ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیپی منکا تاگا موتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ ارے سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دو نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے فرض نماز میں، ٹھیک ہے، نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقدہ، سنن، نوافل اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز پڑھو، تو نماز کی طرف بھاگو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ یاد ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں، یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یادوں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے، اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے
इससे पहले जो उससे छोटा, फिर रुकू इससे पहले के रुकू से कुछ छोटा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर 2 सजदे, फिर उसके बाद जैसा आप अत्तहियात, दरूद, दुआ मासूरा वगैरह जो पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है तरीक़ा सलातुल खुसूफ और खुसूफ का। कि तो हदीस में क्या अल्फाज है, जब तुम इन दोनों को देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, नमाज कायम करो। हालांकि अल्लाह के रसूल ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी, लेकिन फरमाया क्या, जब तुम इनको देखो सूरज और चांद ग्रहण को, तो तुम क्या करो, नमाज पढ़ो। तो हमको दोनों के लिए नमाज पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बनफ्से नफीस कौन सी नमाज पढ़ी खुद, वो था सूरज ग्रहण का, जब आपके बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। समझ गया बात को। तो बहरहाल ये हुआ। इसके अलावा 3 रुकू और 4 रुकू के ताल्लुक से भी रिवायतें मिलती है। 2 रुकू, 3 रुकू और 4 रुकू से एक रकात। समझ रहा मतलब पहले 2 रुकू का मैंने तरीका बता दिया, मतलब टोटल 2 रकात में 4 रुकू होंगे। उसके बाद दूसरा तरीका 3-3 रुकू वाला होगा, टोटल कितने रुकू होंगे, 6 रुकू होंगे। इसी तरह एक रिवायत के अंदर 4-4 रुकू है, मतलब टोटल मिला के हो जाएंगे 8। एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू और एक रकात में 4 रुकू तक का ये अमल साबित है। एक रकात में 1 रुकू और एक रकात में 5 रुकू, ये दोनों रिवायतें ज़ईफ है, ठीक है। एक क़याम जब 2 रकात पढ़ते हैं ना इसमें, तो एक उसमें 1 रुकू वाली भी रिवायत आती है, लेकिन वो ज़ईफ है। और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक क़याम में, तो लेकिन ये भी एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज़्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू वही बता देता हूँ मैं आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं अहद रिसालत में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातों में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सजदे नहीं बदलेंगे। 2 रुकू 4 रुकू वाली नमाज में, मतलब एक रकात में 2 रुकू में भी 2 सजदे हैं, 3 रुकू में भी 2 सजदे और 4 रुकू में भी सजदे नहीं बदलेंगे, खाली रुकुओं का मसला है। और रुकू जितने होंगे क़याम भी उतने होंगे, याद रखें। रुकू जितने होंगे क़याम भी उतने होंगे, ये बात याद रखें, ठीक। तो आपने 6 रुकू से पढ़ाया 2 रकात। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात 8 रुकू और 4 सजदे से पढ़ाई। समझ गया। तो एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू या एक रकात में 4 रुकू तक किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो उलमा लिखते हैं वो 2 वाला है, क्योंकि वो सही बुखारी की रिवायत है और 2 बेहतर है बहरहाल। लेकिन कोई 2 से ज़ायद 3 और 4 भी करना है तो कर सकता है, लेकिन 1 और 5 वाली दोनों रिवायतें याद रखी ज़ईफ़ है। तो पता चला खुसूफ और खुसूफ में रुकू 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 रकात में, मतलब एक रकात में 2, 3 या 4 होंगे, याद रखें, ठीक है। सेकेंड रकात सेम ऐसे रिपीट होंगे। तो 2 रुकू की पहली रकात मतलब 4 रुकू और 4 सजदे हुए, 3 रुकू की पहली रकात मतलब 6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे। तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया, मैं समझता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो। और 1 और 5 की रिवायतें दोनों ज़ईफ़ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपके सामने, ठीक। अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं ये ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें। हालांकि 3 और 4 की भी बहरहाल रिवायतें हमको मिलती हैं, ठीक। इसी तरह जो है इस मौके पर और क्या क्या किया जाए, क्या क्या अमल करना है वो देख रहे हैं। तो पहला तो अमल देख लिया नमाज, और क्या कर सकते हैं नमाज के अलावा। तो आइए आगे हम रिवायत में देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करने के बाद, ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम इन दोनों यानी सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, पहला काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, नमाज पढ़ो इस वक्त तक के वापस से वो जाहिर ना हो जाए, तो दुआ करना है और नमाज पढ़ना है, ये एक मिल गया। इसी तरह एक और रिवायत में जो सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम सूरज गहन देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। पहली बात में दुआ आ गया और नमाज आ गया, इसमें आ रहा अल्लाह ताला का जिक्र करो जब गहन हो जाए, ठीक है। फिर फरमाया तकबीरें कहो, दूसरा अमल आ रहा है। उसके बाद फरमाया नमाज पढ़ो और सदका करो, ठीक है। इतने अमल इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, उसके अंदर ये अल्फाज है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
जब तुम इसको यानी आफताब और महताब सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो, ठीक है, तो कुछ भी देखो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो। देखिए दुआ और नमाज सब में है, एक में जिक्र है, एक में तकबीर है, एक में सदका है और इसमें इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ज़्यादा है, और नमाज और दुआ तो सब में ही आ रहा है। तो हमें बहुत सारे आमाल इसके अंदर मिल गए जो हमें करना है। तो अब वो क्या क्या आमाल है जो हमें करना है, जो हमको इन रिवायतों से मिले? पहला, नमाज कायम करना है। जब कुसूफ या खुसूफ सूरज और चांद गहन हो जाए तो क्या क्या अमल करना है? पहला, नमाज कायम करना है, तरीक़ा मैं बता चुका हूँ। दूसरा, दुआ करना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी कर, ठीक है, और हमें बचा ले, ठीक है, तेरे अजाब से, ठीक है, क़यामत की तकलीफ़ों से, ठीक है, उसकी निशानियों से, हमारी तौबा कबूल कर, ठीक है, तो दुआ करना है। तीसरा, तकबीरात कहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान, अल्लाहु अकबर बयान करना है। चौथा, सदका करना है, सदका करना है, ठीक है, और पांचवा, इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है कि अल्लाह ने जिस तरह से थोड़ी देर के लिए सूरज और चांद को छुपाया है वो कादिर है कि इसको हमेशा के लिए छुपा ले। 5 अमल करना है, नमाज, दुआ, तकबीरात, सदका और इस्तिग़फ़ार हमें करना है। सदक़े के ताल्लुक़ से एक वजाहत कर दूँ, हमारे पास सूरज और चांद गहन में स्पेसिफिक सदका दिया जाता है, साबित नहीं। स्पेसिफिक सदका क्या होता है मालूम? एक प्लेट, नमक, हल्दी, मिर्ची, अंडा, भिलावा, सूखी मिर्ची, फुला तेल और ये और वो, स्पेसिफिक सदका देते हैं उस दिन। ये साबित नहीं है। आप सदका कीजिए, कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक सदका नहीं है। स्पेसिफिक मतलब खास नहीं कर सकते आप किसी सदके को, जैसे हमारे पास देते हैं, समझ गया, इतना 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 इतना, वो पर्टिकुलर चीज़ें होती है, हल्दी, मिर्ची, नमक, अंडा, तेल, भिलावा, लाल मिर्ची सूखी हुई, हरी मिर्चियाँ, कुछ नींबू, ये नहीं है, ये नहीं है कुछ भी सदका। हाँ, अगर यही सब चीज़ों से सालन वगैरह बनता है, किसी को खाने को दे रहे, एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली ऐसे सदक़े मैंने देखा हूँ सूरज चांद गहन में, तो ये साबित नहीं। आप रुपया दे, पैसा दे, जानवर दे, कुछ भी दे, आप कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। सदका क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि सदक़ात मुसीबत और बलाओं को टालते हैं, ठीक है। और ये सूरज और चांद के लिए सदका नहीं दे रहे, इसमें कोई भी काम सूरज चांद के लिए नहीं हो रहा। दुआ मांगो तो आप सूरज और चांद के लिए दुआ मत मांगिए, अपने लिए मांगना है। इस्तिग़फ़ार सूरज चांद के लिए नहीं, क्योंकि एक अकीदा ये भी मुसलमानों में कि सूरज और चांद तकलीफ में रहते उस दिन, तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हो, अल्लाह उनके साथ आसानी करे। तो पहले साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, समझते घुस जाते एक दूसरे में, पता नहीं क्या होता, कोलाइड हो जाते, तो वो दुआएं करते थे, तकलीफ में बोलते थे सूरज चांद से लाल हो जाता, बोले सूरज और चांद। ये सब नहीं है, अनसाइंटिफिक बातें हैं सब, और ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं। तो दुआ अपने लिए, इस्तिग़फ़ार अपने लिए, सदका अपने लिए, जिक्र अल्लाह का, तकबीरात बयान करना है, और साथ में नमाज कायम करना है। 5 अमाल करना है। जब ये चीज़ों में से कोई घटना सूरज और चांद हो जाए, कुसूफ या खुसूफ हो जाए, तो आपको ये काम करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुसूफ और खुसूफ की नमाज मर्द और औरतें दोनों के लिए है। बहरहाल हमारे पास तो फ़र्ज में आना बंद कर दिया इनका, औरतों का, तब अब कुसूफ खुसूफ क्या बोलूँ मैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक औरतें मस्जिद हरम में, मस्जिद नबी में आती थी, आती है और आती रहेंगी क़यामत। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर पूरे दुनिया की मस्जिदों में औरतें नमाजों को आती है, 5 वक्ता आती थी, आती है और आती रहेंगी। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पूरे लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडे मस्जिदों के बाहर बैठते हैं, लिहाजा छेड़छाड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग एहतियातन फितना ना हो बल्कि औरतों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि यहाँ शरीफ लोग नहीं रहते ना। लेकिन बाजार वगैरह में बहुत शरीफ लोग मौजूद होते हैं, तो वो तो कभी कुछ नहीं करते हमारी औरतों के साथ। कॉलेजेस के अंदर भी बड़ी शराफत का अमल होता है हमारी बच्चियों के साथ, तो कोई मसला ही नहीं। वहाँ तो नेक लोग ही होते हैं, वहाँ तो पूरे अल्लाह के वलियाँ रहते हैं पूरे। इसी तरह थिएटर्स में पूरे अल्लाह के वली है, तो वहाँ नहीं होता, लेकिन मस्जिदों में सारे लुच्चे लफंगे उसके अतराफ घूमते रहते हैं। जैसी औरत गई तो फितना होने का डर बढ़ जाता है। हाँ, अकेली सफ़र करके वो दुनिया के कोनों में घूम सकती है, लेकिन नमाज को अकेली नहीं, या नमाज को मस्जिद में जाने से क्या होता है? फितना होता है। तो शायद हम लोग ये इंडिया, पाकिस्तान में दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हाँ पूरे लुच्चे लफंगे मवालियाँ हमारे पास ही है, और मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे कम्युनिटी में इतने गंदे लोग हैं कि हमारी औरतें मस्जिद को नहीं जा सकती नमाज के लिए। वल्लाहु आलम, फिर इसके अलावा क्या वजह है? अगर लोग बताए तो मैं भी अपनी राय बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा कि नहीं नहीं भाई सही बात है, औरत का मस्जिद में आना इतना है। ये तो पूरे गल्फ में औरत मस्जिद में आ रही है, पूरे यूरोप में मस्जिद में औरत आती है, आती थी, आती है और आती रहेंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों ने, उमय्यद ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल बाद अंदलूस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप, नमाज़ें पढ़ी, पूरा इंतजाम था,
ऑटोमन एम्पायर जो लास्ट खत्म होने वाली हुकूमत थी यूरोप से जो निकली, जितनी मस्जिदें थी औरतों का इंतजाम था, बिल्कुल। तुर्की जो खिलाफत बोलते औरतों का था, तो पूरे यूरोप में औरतें आती थी, आती है, आती रहेंगी। पूरे अमेरिका में जब मस्जिदें स्टैब्लिश हुई, औरतों का इंतजाम शुरू से है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में वही हाल है, आप रशिया चले जाए वही हाल है, मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बर्रे सगीर में फितना है, बाकी जगह फितना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि शायद हमारे पास इतने बुरे लोग हैं, या फिर हमारी औरतें इतनी बुरी है कि बाहर आके फितना कर देती, तो लिहाजा मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग उनको आने नहीं देते। सोचो मुसलमानों, सोचो। तो ये नमाज मर्द और औरतें दोनों पढ़ेंगी, दोनों के, इसलिए कि इस वाक़यात में जो रावियों के मैंने नाम लिया, माई आयशा ने एक हदीस रिवायत की, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, नमाज पढ़ाई हमको, और एक रिवायत में अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन है वो भी मौजूद थी, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने खिरत की, हमने खिरत सुनी, नमाज में खिरत भी होती है, सुनी। तो औरतें थी, उन्होंने इसलिए नमाज को सुना, खिरत को सुना, समझिए बात को, ठीक है। तो बहरहाल मर्द और औरतें दोनों के लिए। अब नमाज कसोफ बाजमात अदा करना चाहिए, यही सुन्नत है, यही राजे है, यही दुरुस्त और बेहतर है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए इसके ताल्लुक से इमाम बुखारी ने जो है एक बाब बांधा बुखारी के अंदर, और बाब कायम किया सलातुल कुसूफ जमा, एक बाब बांधा कि कुसूफ की नमाज जमात के साथ, ठीक है। तो गोया ये नमाज बा जमात होती है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी देने वाले को भेजा, मतलब जब आप नमाज के लिए आपने एक आदमी को भेजा, और वो आदमी कह रहा था अस्सलातुल जामिया, कि नमाज के लिए जमा हो जाओ, तो गोया अजान नहीं दी जाएंगी इसके लिए, ये नमाज में कोई इकामत भी नहीं है, लेकिन इस नमाज के लिए आवाज़ दी जा सकती, नमाज के लिए जमा हो, नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ, ये कहने में कोई हर्ज नहीं। जदीद दौर में व्हाट्सएप वगैरह के जरिए भी आप बोल सकते नमाज को आ जाओ, ठीक, मतलब बुलाना मकसूद है, इसमें कोई अजान नहीं है, इसमें कोई इकामत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को भेजा, ये अल्लाह के रसूल ने खुद कहा नमाज के लिए जमा हो जाओ, यानी नमाज के लिए जमा हो जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी देने वाले को भेजा और उसे कहा कहो नमाज के लिए जमा हो जाओ, उसने ऐलान किया और लोग नमाज के लिए जमा हो गए, ठीक है। तो इसको बाजमात पढ़ना है, मर्दी औरतें भी पढ़ेंगी, इसके लिए कोई अजान नहीं, कोई इकामत नहीं, लेकिन इसके लिए ऐलान किया जा सकता है कि नमाज के लिए आ जाओ, या नमाज इतने टाइम पर ही मस्जिद में होगी, क्योंकि आजकल पहले से पता होता है कि कब सूरज ग्रहण चालू है, कब, तो हम पहले से बोल सकते हैं कि 6:22 को शुरू हो तो मगरिब पढ़िए, मगरिब के बाद सलातुल कुसूफ होंगी या सलातुल खुसूफ होंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नमाज कुसूफ में जहरी क़िरात की जाएंगी, याद रखें, इमाम क़िरात करेगा, जिसके ताल्लुक से सहीह बुखारी की रिवायत में आयशा फरमाती और कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ पढ़ाई जिसमें जहर से क़िरात की, जोर से क़िरात की, तो इसमें जोर से सुनेंगे। इस ताल्लुक से कुछ रिवायतें आती, कुछ सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ने क़िरात नहीं कराई, लेकिन इस पर लोगों ने कलाम किया कि ज़ईफ़ है। तो मैं आयशा कहती है कि उन्होंने क़िरात की, मतलब सुने आ रही थी औरतों की सब तक जो है आवाज़, ठीक। और इसके अलावा याद रखिए नमाज कुसूफ के बाद जो खुतबा देना भी, अब क्या करना है, तो पहली चीज़ याद रखिए, जब ये हो जाए, कुसूफ हो जाए, कुसूफ हो जाए, सूरज और चांद गहन हो जाए, तो सबसे पहला काम करना है नमाज पढ़ना है, और ये नमाज पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है, ये नमाज पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, सूरज और चांद गहन होते जा रहे हैं, सदियों से मुसलमान देखते जा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इसमें नमाज पढ़ो, आप नमाज को ऐसे भागे, रिवायत में आता है जैसे क़यामत कायम होने वाली है, आप नमाज को रिवायत में आता है ऐसे भागे, रावी कहते हैं कि आपकी चादर छूट गई तो उसको आप घसीटते हुए मस्जिद की तरफ भागे, रावी कह रहे हैं कि हम पीछे भागे, हमको डर हुआ नबी की घबराहट देखकर, आपकी तेज़ी देखकर कि आप चादर घसीटते हुए मस्जिद की तरफ भाग रहे, हमको घबराहट हुई कि क़यामत तो कायम नहीं हो गई, और अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ी, तो ये सुन्नत मौक़ूदा है। और हमारा हाल क्या है, एक तो वो है लोग हैं जो बदअक़ीदगी मारे जा रहे हैं, अब बलाएं तूफान आंधी ये तो कौड़ी चीटी मनका तागा मोतियों के पीछे पड़े, और दूसरे लोग वो है कि आज अपन दूरबीन से देखेंगे बस। ठीक है भाई, देखो साइंटिफिक मुशाहिदा भी ठीक है, लेकिन असल चीज़ जो करना है इस्लाम बता रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, इस्लाम जहाँ गाइड करता है वहाँ हमको नहीं सुनना है, और जहाँ कोई गाइडेंस इस्लाम नहीं दे रहा है मतलब छोड़ दो, वो अमल में हम अपने तरीक़े ईजाद करते हैं। अरे सोचो ज़रा, नमाज की तरफ जाओ, फिर नमाज सुन्नत मौक़ूदा है। आइए इस ताल्लुक़ से रिवायतें देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, क्योंकि मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शम्स और क़मर अल्लाह की निशानियाँ हैं, सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियाँ हैं, और ये दो निशानियाँ हैं, और इनको गहन किसी की मौत या हयात की वजह से नहीं लगता, चुनांचे जब तुम इन्हें इस हालत में देखो गहन की, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो और नमाज पढ़ो हत्ता कि गहन खुल जाए। तो गहन के ख़त्म होने तक क्या करना है मुझे और आपको, नमाज पढ़ना है।
شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، فرض نماز میں، ٹھیک ہے، نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقعہ، سنن، نوافل، اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز پڑھو، تو نماز کی طرف بھاگو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقعہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو، اب تو بالکل نون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں، یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یادوں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے، اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی خود؟ وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا،
मतलब टोटल 2 रकात में 4 रुकू होंगे। उसके बाद दूसरा तरीका 3-3 रुकू वाला होगा, टोटल कितने रुकू होंगे? 6 रुकू होंगे। इसी तरह एक रिवायत के अंदर 4-4 रुकू है, मतलब टोटल मिला के हो जाएंगे 8। एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू और एक रकात में 4 रुकू तक का ये अमल साबित है। एक रकात में 1 रुकू और एक रकात में 5 रुकू, ये दोनों रिवायतें ज़ईफ है। ठीक है, एक क़याम जब 2 रकात पढ़ते हैं ना इसमें, तो एक उसमें 1 रुकू वाली भी रिवायत आती है लेकिन वो ज़ईफ है, और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक क़याम में, तो लेकिन ये भी एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज़्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू वही बता देता हूँ मैं आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं अहद रिसालत में सूरज गहन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातों में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सजदे नहीं बदलेंगे, 2 रुकू 4 रुकू वाली नमाज में मतलब एक रकात में 2 रुकू में भी 2 सजदे हैं, 3 रुकू में भी 2 सजदे हैं और 4 रुकू में भी सजदे नहीं बदलेंगे, खाली रुकुओं का मसला है। और रुकू जितने होंगे क़याम भी उतने होंगे, याद रखें, रुकू जितने होंगे क़याम भी उतने होंगे, ये बात याद रखें। ठीक, तो आपने 6 रुकू से पढ़ाया 2 रकात। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात 8 रुकू और 4 सजदे से पढ़ाई। समझ गया? तो एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू या एक रकात में 4 रुकू तक किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो उलमा लिखते हैं वो 2 वाला है, क्योंकि वो सही बुखारी की रिवायत है और 2 बेहतर है बहरहाल। लेकिन कोई 2 से ज़ायद 3 और 4 भी करना है तो कर सकता है, लेकिन 1 और 5 वाली दोनों रिवायतें याद रखी ज़ईफ है। तो पता चला खुसूफ और खुसूफ में रुकू 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 रकात में, मतलब एक रकात में 2, 3 या 4 होंगे, याद रखें। ठीक है, सेकेंड रकात सेम ऐसे रिपीट होंगे। तो 2 रुकू की पहली रकात मतलब 4 रुकू और 4 सजदे हुए, 3 रुकू की पहली रकात मतलब 6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे। तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया? मैं समझता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो, और 1 और 5 की रिवायतें दोनों ज़ईफ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपके सामने। ठीक, अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं ये ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें।